Supreme Court, Junior Court Assistant aspirants, you are all welcome. In the previous video, we discussed idioms and phrases from PT 2017 and 2022. In this video, we are going to discuss one word substitutions, which appeared in 2017 and 2022 PT preliminary tests. Let us have a brief look at them. Choose the word option which can be substituted for the given words sentences. Okay. Choose the option विकल्पों में से चुनिए जो इस वाक्य का स्थान ले सकता है. What one word substitution is? You use a word instead of a sentence or a group of words. The substitution by a word is called one word substitution. We have one word for many words. Simply speaking, today's sentence is a place where bees are kept. वह स्थान जहां पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? A place where bees are kept. A place where honey is produced. Honey is extracted from bee comb. और मधुमक्खी के छत्ते से उसे निकाला जाता है. और वह स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं ताकि वो छत्ता बने और उससे शहद निकले, उसे क्या कहते हैं? Have a look. The first option is aviary. Aviary वह स्थान जहां पर पक्षियां रखते हैं. That is called aviary. A place where birds are kept. Okay. Next one is apiary. Apiary where a place where bees are kept. वह स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं, उसे एपियरी कहते हैं. और option 2 is the correct answer choice. Okay. Now we have got the correct answer choice. Let us discuss the meaning of these two words. The third one is dray. Dray means truck with no sides. What truck? जिसके साइड्स में कुछ नहीं होते हैं, खुला रहता है, ओपन जो ट्रक होता है उसे ड्रे कहते हैं. और एरी ये घोंसले को कहते हैं, नेस्ट को, घोंसले को. ओके. नाउ वी हैव taken a place where bees are kept is called apiary. The next one is an extremely confused or complicated situation. Confused means भ्रमित, complicated means जटिल, situation means परिस्थिति, स्थिति,
एक्सट्रीमली मीन्स बहुत अधिक, एक बहुत ही ज्यादा जटिल एवं असमंजस वाली स्थिति को, दिस वन इज स्थिति सिचुएशन क्या कहते हैं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई बहुत ही भ्रमित है और परिस्थिति बहुत जटिल है, उसमें निर्णय लेना कोई कठिन हो, इस परिस्थिति को such a situation, what is this situation called? Aspirants, let us have a look at the options. Sodality, it means brotherhood. The next one is oppune, OPPUGN, oppune means exclude, इस चीज को हटा दो. The next one is imbroglio. This one is called confused and complicated situation. This one is confused and complicated situation. And tiff, it means argument. This one is an extremely confused and complicated situation. एक बहुत ही जटिल एवं भ्रमित करने वाली स्थिति जो है, ओके, उसे क्या कहते हैं? इम्ब्रॉली. Have a look at the pronunciation. It is pronounced imbroglio. G is silent here. G is silent. Imbroglio. Okay. एक जटिल भ्रमित परिस्थिति को. Next one is a formal resignation and renunciation of powers. What do you mean resignation and renunciation? A person, an act of resignation. When a king or queen or a person in power renounces his position, gives up his or her position. जब कोई व्यक्ति, जब कोई कुर्सी पे बैठा व्यक्ति, चाहे राजा हो, रानी हो, मंत्री हो या किसी ऊंचे पद पे, अपने पद को छोड़ देता है, तो उसके लिए जो आप शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या है? ओके, उसके लिए शब्द है एब्डिकेशन. क्या है? एब्डिकेशन. When a king or queen or a person in power quits his position, जब वो अपने पद को छोड़ देता है, action of quit, act of quitting one's position, act of अपने पद को छोड़ देना, that is called, the verb is abdicate. This is the noun form. Abdicate means छोड़ देना. Abdication means the act of quitting. Now have a look at other options. Fauna means plants of a specific area. किसी क्षेत्र विशेष के plants of a specific area called, no, sorry, not plants, sorry, in fact, animals of a specific area is called fauna. Regalia means medals. You might have seen, आपने देखा होगा वो अधिकारी जिनके दोनों कंधों पर पुलिस के अधिकारी हों या पैरामिलिट्री या सेना के अधिकारी हों, उनके कंधों पर जो मेडल्स से सजे रहते हैं, they are called regalia.
और एक्सियम क्या है? एक ऐसी थियरी है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसे मान लिया गया है, दैट इज कॉल्ड एक्सियम। फौना, किसी क्षेत्र विशेष के पशुओं को फौना कहते हैं। पदकों को, जो पदक जिसे सजे हुए होते हैं अधिकारी, उसे रिगेलिया कहते हैं। एक्सियम क्या है? एक थियरी है जिसे सही मान लिया गया है। और एब्डिकेशन, पद त्याग। नाउ मूव ऑन टू, दैट्स व्हाई fourth one is the correct answer choice. Now let us move to the next one. A person who hates reason or discussion. एक ऐसा व्यक्ति जो कारण को, यानी ज्ञान को, कारण क्या है, लॉजिक क्या है, जो लॉजिक को और बातचीत को से नफरत करता है, वैसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? नाउ लेट अस हैव लुक एट द आंसर चॉइसेस. Misogynist means one who hates women. एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है, उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं. A person who hates reason or discussion is called misologist. Mis means घृणा करना, logist, logy means ज्ञान, जो ज्ञान से जिसको नफरत हो, कारण से नफरत हो, लॉजिक से नफरत हो, उसे मिसोलॉजिस्ट कहते हैं. गिनी मीन्स महिला, मिसो मीन्स हेट, वह व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं. मिस मीन्स घृणा करना. एंथ्रोप मीन्स मैन, ह्यूमंस. मिसैंथ्रोपी, आई थिंक it should be a Y instead of I. Misanthropy means manodvesh, one who hates humans, and bibliophile, one who loves books. Now we come to the conclusion that मिसोलॉजिस्ट is the correct answer choice. It means ज्ञान से नफरत, मिसोलॉजिस्ट, ज्ञान से नफरत करने वाला, one who hates logic, reasoning and rationale. Now move on to the next one. A child who stays away from school without leave or explanation. एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा छात्र जो स्कूल नहीं जाता है, ओके, बिना छुट्टी लिए हुए या बिना व्याख्या किए हुए कि क्यों नहीं आया है, बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित कारण के जो स्कूल नहीं जाता है, उसे दूर रहता है, उसे क्या, उसे ट्रूअंट कहते हैं, उसे ट्रूअंट कहते हैं. ओके, ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस. ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस. सिनिक, one who doesn't see good in anybody, जिसको किसी में भी कोई अच्छाई नहीं लगती है, उसे सिनिक कहते हैं. मार्टिनेट, MARTINET. मार्टिनेट मीन्स a strict डिसिप्लिनेरियन. एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा कड़ा होता है और नियमों को बहुत कड़ाई से लागू करता है, उसे मार्टिनेट कहते हैं. इसे टास्क मास्टर भी कहते हैं. टास्क मास्टर भी कहते हैं. ओके, जो कड़ाई से नियमों को पालन करता है उसे मार्टिनेट या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन या टास्क मास्टर कहते हैं. Acquiescent, one who is obedient, वह जो आज्ञाकारी है, या वह जो सरेंडर कर जाता है, किसी की बात को मान लेता है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है किसी की बात को, he is called acquiescent, obedient. Okay, or one who tends to accept things, okay, without any objection. Next one.
टू एक्सप्रेस वीहेमेंट प्रोटेस्ट, व्हाट डज इट मीन? टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, वीहेमेंट मीन्स, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, और वीवेंट मीन्स बहुत ज्यादा बल से, जोर से, पूरी शक्ति से जो विरोध प्रदर्शित करता है, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? ओके, जो बहुत शक्ति से विरोध प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? ये इनविगोरेट का अर्थ होता है, वीगर मीन्स शक्ति, वीगर मीन्स शक्ति, एट मीन्स बनाना, शक्तिशाली बनाना, इनविगोरेट मीन्स शक्तिशाली बनाना, टू मेक स्ट्रॉन्ग अगेन, किसी को पुनः शक्तिशाली बना, अगेन पुनः किसी को शक्तिशाली बना देना, दिस इज कॉल्ड इनविगोरेट। फल्मिनेट मीन्स टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज यानी कि किसी की निंदा करना। exaltation, exalt means glorify, glorification, महिमा, मंडप, glorify, glorification, glorification, glory, और you can say glory, किसी की महिमा को exaltation कहते हैं। language, to become weak, कमजोर होना, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज मीन्स कमजोर होना, एक्सल्टेशन मीन्स महिमा, फल्मिनेट मीन्स निंदा करना, विरोध करना, प्रोटेस्ट, और इनविगोरेट मीन्स शक्तिशाली बनाना। आंसर चॉइस 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर चॉइस, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर चॉइस। दिस वर्ड can be expanded into to express vehement protest। इस शब्द को आप जब आप इसको का विस्तार करेंगे तो वाक्य में क्या कह सकते हैं कि बहुत कड़ा विरोध एवं निंदा एवं प्रदर्शन करना, विरोध करना। नेक्स्ट, टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल मैनर, कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स बधाई देना, किसी को बधाई देना, फॉर्मल मीन्स औपचारिक, मैनर मीन्स तरीका ढंग, किसी को विधिवत रूप से, किसी को औपचारिक रूप से बधाई देना, इसे क्या कहते हैं? आइए विकल्पों को देखते हैं। सोलेमनाइज मीन्स टू हैपन और टेक प्लेस। जैसे अगर किसी का विवाह होता है तो आप कह सकते हैं हिज मैरिज, द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड, यानी कि विवाह हुआ। किसी गंभीर चीज, पवित्र चीज जो समाज में है, उसको होने के लिए, उसके घटित होने के लिए शब्द सोलेमनाइज का प्रयोग करते हैं, ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज फैसिलिटेट, किसी का स्वागत करना, किसी का स्वागत करना, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेट, या किसी को बधाई दे, बधाई। सेलिब्रेट, किसी की प्रशंसा करना, सेलिब्रेट मीन्स किसी की प्रशंसा करना, और फेलिसिटेट, फैसिलिटेट मीन्स सॉरी फैसिलिटेट मीन्स टू मेक इजी, किसी चीज को सरल बनाना, टू मेक इजी। जैसे कोई कार्य है उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना फैसिलिटेट है। सेलिब्रेट है टू कमेमोरेट, किसी सेलिब्रेट मीन्स समारोह करना, या किसी जन्मदिन या इत्यादि किसी दिन को मनाना, और फेलिसिटेट मीन्स बधाई देना, कंग्रेचुलेट, टू कंग्रेचुलेट। ओके, सोलेमनाइज होना, फैसिलिटेट मार्ग प्रशस्त करना, सेलिब्रेट कॉमेमोरेट या प्रशंसा करने के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, और फेलिसिटेट मीन्स बधाई देना, फेलिसिटेट।
ऑप्शन फोर, sorry, option 4 is the correct answer choice, is the correct answer choice. Next one, aspirants, the eighth one is one who has a special skill, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ विशेष कौशल है इन जजिंग आर्ट, कला के संबंध में, यानी कि कला का पारखी है, और म्यूजिक और टेस्ट इत्यादि, यानी कि जो कला या संगीत या इत्यादि की बहुत अच्छा ज्ञान रखता है और उसको समझता है, परखता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? आइए, कौनसर, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? कौनसर कहते हैं। उच्चारण ध्यान देंगे, क्या पढ़ते हैं? कौनसर पढ़ते हैं, कौनसर, CONNOYSSEUR। इसके स्पेलिंग पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये स्पेलिंग में भी कभी कभी पूछा जाता है, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। ओके, कौनसर, वन हु इज एक्सपर्ट एट जजिंग art, music, and so on. And next one is confectioner. Confectioner means वो हलवाई जिसे कहते हैं, हलवाई जो मिठाई बनाता है, ओके, उसे कन्फेक्शनर कहते हैं। कन्वालेसेंट मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, जो बीमार पड़ गया था लेकिन बीमारी के उपरांत अब वो स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, ही इज रिकुपरेटिंग, ही इज रिकवरिंग, जो रिकवर हो रहा है, वो कन्वालेसेंट है। और द नेक्स्ट वन इज इग्नोरेमस, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं रखता है। ओके, द सॉरी, ऑप्शन चॉइस वन, option 1 is the correct answer choice. Now move on to the next. One who delights in speaking about oneself, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में खूब बोलता है और बोलकर खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो अपने बारे में बोलकर खुश होता है, प्रसन्न होता है, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? आइए एक एक करके, अल्ट्रुइस्ट, वन हु लव्स ह्यूमंस, one who loves, sorry, one who loves other fellows, एक व्यक्ति जो दूसरे लोगों से प्यार करता है, मानव से प्यार करता है, मानव प्रेमी है, वह अल्ट्रुइस्ट है। सेल्फिश है, जो अपने ही बारे में काम अपने ही लिए काम करता है, वो सेल्फिश है। ओके, वन हु टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ ओनली और हरसेल्फ ओनली। ईगोइस्ट वह है जो अपने ही बारे में बात करता है, अपने ही बारे में बात कर, इसमें भी सेल्फिशनेस का थोड़ी सी मात्रा है, लेकिन केवल वो स्वार्थी नहीं है, बल्कि अपने बारे में बात करके वो प्रसन्न होता है। एरोगेंट, घमंडी, एरोगेंट, घमंडी, घमंडी को एरोगेंट कहते हैं। आंसर चॉइस 3 इज द करेक्ट आंसर चॉइस। Let now move on to the next one. A leader of the people who can sway away his followers by his orator. एक ऐसा नेता जो अपने भाषण के द्वारा लोगों के रुख को मोड़ देता है, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपने अपने भाषण से, अपने शब्दों से लोगों का मन, लोगों का दिल जीत लेता है और पे उनकी भावनाओं को प्रभावित करता है। ऐसे नेता को क्या? लीडर एक सामान्य शब्द है, ओरेटर एक सामान्य शब्द, जो अच्छे भाषण देता है उसे ओरेटर कहते हैं, जो प्रतिनिधि होता है, लोगों का नेतृत्व करता है, उसे लीडर कहते हैं, और जो प्रतिनिधित्व करता है उसे लीडर कहते हैं, और वह जो लोगों को एजिटेट करता है, लोगों को एजिटेट करता है किसी चीज पर, किसी वह नेता जो भड़काऊ भाषण देकर से कुछ करवा लेता है, भीड़ को उत्तेजित कर देता है, उसे फायर ब्रांड कहते हैं, ये रेबल राउजर भी कहते हैं, रेबल राउजर कहते हैं, रेबल राउजर कहते हैं। और वह नेता जो अपने भाषण के द्वारा, अपने भाषण से लोगों को प्रभावित करके अपने पक्ष में कर लेता है, ऐसे नेता को, ऐसे
डेमागॉग कहते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 is the correct answer choice. Okay. Option 3 is the correct answer choice. Next one is an associate in office or institution, किसी संस्था में जो साथी है या सहायक कार्य करने वाला है उसे क्या कहते हैं? कंपेनियन किसी व्यक्ति के साथी को जो उसके साथ रहता है उसे कंपेनियन कहते हैं। जो कार्यस्थल पर उसके साथ काम करता है, को वर्कर, उसे कलीग कहते हैं। और वह जो अपराध में अ पार्टनर इन क्राइम जो अपराध में साथ देता है उसे अकॉम्प्लिस कहते हैं। अलाई साथी को कहते हैं। और फ्रेंड कह सकते या एसोसिएट कह सकते हैं। एसोसिएट साथी को कहते हैं। अलाई साथ देने वाला, एक साथ काम करने वाले जो है ना उसका अलाई। Option choice 2. Option 2 is the correct answer choice. Is the correct answer choice. Now move on to the next one. A disease of the mind causing an uncontrollable desire to steal. चोरी करने की तीव्र इच्छा, ये बीमारी के रूप में है। वो चोरी इसलिए नहीं करता है कि उसकी आवश्यकता हो, बल्कि एक बीमारी है। इसके कारण वो चोरी करता है। इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? The first thing is the first thing is क्लॉस्ट्रोफोबिया। एक वह व्यक्ति जिसे फियर ऑफ इनक्लोज प्लेसेस, बंद स्थान के भय को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। फोबिया मीन्स भय, क्लॉस्ट्रम मीन्स बंद स्थान, एंड क्लेप्टो मीन्स चोरी, मैनिया मीन्स ऑब्सेशन पागलपन, क्लेप्टोमैनिया an unresistible desire to steal, चोरी करने की तीव्र इच्छा को क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। A desire to glorify oneself, अपने आप की प्रशंसा करने की इच्छा जो है या बड़ा दिखाने की, इसको मेगालोमेनिया कहते हैं। और मेंटल डिसऑर्डर और मानसिक गड़बड़ी को स्किट्सोफ्रेनिया कहते हैं। स्किट्सोफ्रेनिया कहते हैं। ऑप्शन चॉइस 2, ओके, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर चॉइस। क्लेप्टोमेनिया मीन्स चोरी करने की तीव्र इच्छा। नेक्स्ट वन इज a process involving too much official formality, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आधिकारिक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा औपचारिकता हो, आधिकारिक औपचारिकता हो, उसे क्या कहते हैं? इसे रेड टेपिज्म कहते हैं, लाल फीता शाही इसे कहते हैं। द हिंदी इज लाल फीता शाही, रेड टेपिज्म लाल फीता शाही। डिप्लोमेसी, आई थिंक यू नो डिप्लोमेसी, कूटनीति, दैट्स द हिंदी इज कूटनीति। जब राजनीतिक ढंग से नहीं बल्कि किसी अन्य प्रकार से दो देशों के बीच में राजनीतिक आधार पे नहीं, विचारधारा के आधार पे नहीं, अन्य ढंग से रिश्तों को सुधारते हैं, ये बातचीत होती है, संपर्क स्थापित होता है दो देशों के बीच, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, जिसे कूटनीति कहते हैं। और नेपोटिज्म, भाई भतीजवाद, फेवरेटिज्म यानी कि भाई भतीजवाद, अपने लोगों को अधिकारियों द्वारा सुविधाएं देना इत्यादि, इसको नेपोटिज्म कहते हैं, अपने सगे संबंधियों को। और ब्यूरोक्रेसी कहते हैं वह शासन व्यवस्था जिसमें अधिकारियों की चलती है, ओके, रूल बाय ऑफिशियल्स को, रूल बाय ऑफिशियल्स, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म, ऑप्शन 1 या is the correct answer choice. Option 1, red टेपिज्म, लाल फीता शाही।
द नेक्स्ट वन इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, एक ऐसी कविता जिसमें जिसमें आ, जैसे किसी की मृत्यु के उपरांत जब शोक मनाते हैं, किसी की मृत्यु मृत्यु के अपरांत उपरांत जब शोक मनाते हैं, उस शोक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीफ कहते हैं, ग्रीफ कहते हैं। और अगर कोई ऐसी कविता है जिसमें किसी के मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया है, उस कविता को क्या कहते हैं? यूलोजी, प्रशंसा, प्रेज को कहते हैं। किसी की प्रशंसा में लिखी चीज को यूलोजी कहते हैं। ट्रायोलॉजी क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थ्री you can say stories, films, etc. तीन कहानियों या फिल्मों के संग्रह को एपिटाफ कहते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम, किसी के कब्र पर लिखे गए शब्दों को, लाइंस को एपिटाफ कहते हैं, जिसे हम शिलालेख भी कहते हैं। और एलजी, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, यानी कि शोक गीत को, या मॉर्निंग, या हैव अ लुक एट द स्पेलिंग, MOURNING, इसका अर्थ है शोक। शोक भरी कविता को ओके क्या कहते हैं? एलेजी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एलेजी। ऑब्वियसली ऑप्शन 4 is the correct answer choice. Now move on to the next one. This one has been repeated. This one has also been repeated. Now, next one. 15. In fact, it should be 15. It should be 15. Okay. Choose the option which can be substituted for the given words. One who has a special skill in judging art. I think it has also been, okay, it has also been repeated. The next one is, okay, one who devotes his service or wealth for the love of mankind, वह व्यक्ति जो मानव प्रेम के लिए, वह व्यक्ति जो मानव प्रेम के लिए अपने धन को समर्पित कर देता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलो मीन्स लव, फिलो मीन्स लव, एंथ्रोपो मीन्स मानव, इष्ट मीन्स करने वाला, मानव से प्रेम करने वाले को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या करते हैं? अपने धन का उपयोग अपने साथियों के लिए, अपने फेलो ह्यूमंस के लिए करते हैं, अपने साथी मानव के लिए करते हैं। इसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ऑल्ट्रुइस्ट, मानव से प्रेम करने वाला। देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स। इन दोनों शब्दों के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ये आपको भ्रमित कर सकता है। वह जो दूसरे के हित को सर्वोपरि रखता है, मानव से प्रेम करता है, वो ऑल्ट्रुइस्ट है। लेकिन वो केवल प्रेम नहीं करता है, अपने धन को भी समर्पित कर देता है, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। मिस घृणा करना, वह जो घृणा करता है एंथ्रोपो मानव से, इष्ट मिस करने वाला, उसे मिस एंथ्रोपिस्ट कहते हैं। मानव द्वेषी जिसे कहते हैं। और फिलिटलिस्ट वह है जो डाक टिकटें जमा करता है। कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, जो डाक टिकटें जमा करता है। वन हु हेट्स ह्यूमंस, जो मानव से घृणा करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट या अल्ट्रुइस्ट। ऑप्शन 3 is the correct answer choice. Option 3 is the correct answer choice. Okay. Now we have discussed all the one word substitutions asked in PT in
2017 and 2022. I we have already told you that we are uploading a series of videos for junior court, Supreme Court junior court assistant. In this series, we have today we uploaded the second video. The first one was on idioms. This one is on uh, one word substitution, and then bringing, we will be uploading the next one. Uh, wish you all the best. See you in the next video. Until then,